Hello everyone, welcome to Shrishit Vidyapit School. I hope you all were fine and safe in your houses. So this is our third introductory class of mathematics of class 6th, in which we were going to start the new chapter named Playing with Numbers. आज हम जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है Playing with Numbers. So it is clear to you with the name that we are going to play with the numbers, right? So at first we will discuss about the factors and multiples which is mentioned in the board, and at next we will discuss about the prime and composite numbers, and at last we will discuss about the test of divisibility for today. So let's start with the factors and multiples. तो अब ये factors and multiples होते क्या हैं? Suppose इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं. से 6 एक हम नंबर लिए, ठीक है. सो 6 इज अ नंबर, राइट. अब 6 जो है वो कौन कौन से नंबर्स के टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, राइट. 1 6 6. ऑल्सो 2 के टेबल में भी आता है, 2 3 6. एंड ऑल्सो 3 के टेबल में भी आता है, राइट, कि 3 into 2 is equals to 6, राइट. So we can write it as one multiplied by 2 multiplied by 3 is equals to 6, right. कि 1 के टेबल में भी 6 आता है एंड 2 के टेबल में भी 6 आता है एंड 3 के टेबल में भी 6 आता है, राइट. So अब what is the relation of it with the factors and multiples, right? अब इसका relation क्या है factors and multiples से? See, जिन numbers को multiply करने से हमारा जो coming जो result आता है उसे हम बोलते हैं, जिन numbers को बोलते हैं factors of बेसिकली नंबर्स को हम बोलते हैं फैक्टर्स. सिंस इट इज इसका जो रिजल्ट आ रहा है वो 6 आ रहा है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं फैक्टर्स ऑफ 6, राइट. एंड द लेफ्ट साइड द नंबर्स व्हिच कम्स आफ्टर मल्टीप्लाइंग दोस नंबर्स, मल्टीप्लाइंग द फैक्टर्स, दैट नंबर्स वर कॉल्ड मल्टीपल्स ऑफ 1, 2 and 3, right. So what I have written, 1 multiplied by 2 multiplied by 3 is the factors of 6 and 6 is the multiple of 1, 2 and 3. जिन तीनों नंबर्स को या जितने भी फैक्टर्स हैं उन्हें मल्टीप्लाई करने से जो हमारा रिजल्ट आता है उन्हें हम बोलते हैं मल्टीपल्स. एंड मल्टीपल कैसे आता है? जिन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारा मल्टीपल आता है उन्हें हम बोलते हैं फैक्टर्स. सो इन दिस वे वी यूज टू से दैट व्हाट फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स आर. So there are few points which we have to keep in mind while estimating factors and multiples. Okay. So एक एक करके हम वो points discuss करेंगे, right? Points are, first point is 1 is the factor of every number. So what I have written, 1 is the factor of every number. से अगर आप जैसे कि 6 के केस में 1 6 के टेबल में मीन्स 6 1 के टेबल में आता है, राइट. एंड ऑफ कोर्स एंड एट द सेम टाइम 7 भी आता है, 8 भी आता है, 100 भी आता है, 100 1 100. इसी तरह इनफाइनाइट नंबर्स जो होते हैं वो 1 उसका फैक्टर होता है, राइट. This way we can say that 1 is the factor of
every number. Second point which we have to keep in mind is the number itself is the factor of that of the number. So what I try to mean with this statement, इसका मतलब ये है कि सपोज कोई नंबर लेते हैं से 7. अब 7 प्राइमरीली किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है, राइट? क्योंकि 1 7 is 7 and of course also 7 into 1 is also 7, राइट? क्योंकि 7 के टेबल में भी 1 आता है. तो ऐसे कोई जितने भी नंबर्स हैं उनमें जो कॉमन जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 और वो नंबर खुद होता है, राइट? So first point what we have discussed, 1 is the factor of every number, and the next point which we have discussed is the number itself is the factor of that number. Okay. So our next point is number of factors are fixed. किसी में नंबर के जो फैक्टर्स होते हैं वो एकदम फिक्स्ड होते हैं, राइट? बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके फैक्टर्स फिक्स्ड रहते हैं, मीन्स जितने भी नंबर्स हैं मोस्ट ऑफ द नंबर्स के जो फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं. so, इसे हमेशा ध्यान रखना. So our next point is force. What it states, number of multiples can be many. इसका मतलब क्या होता है? The number of multiples can be many means किसी भी फैक्टर के जो मल्टीपल्स होते हैं, मतलब उसके टेबल में आता है वो बहुत सारे हो सकते हैं. ओके, इट कैन बी इनफाइनाइट. So up to it is clear, right? Next point is factors are equal or less than the number. So what I have written, factors are equal or less than the number. इसका मतलब क्या होता है
किसी भी फैक्टर का जो मल्टीपल होता है, जो फैक्टर होता है वो इक्वल होगा या उससे कम होगा। कभी भी जो फैक्टर है वो मल्टीपल से ज़्यादा नहीं हो सकता। कभी आपने सुना है कि 16 के टेबल में 17 आता है? नहीं सुना होगा, क्योंकि 16 इज अ स्मॉलर नंबर, राइट? सो वी कैन से दैट फैक्टर्स आर equal or less than the number. Next point is multiples are either equal or more than. इसका मतलब क्या होता है? सपोज हम वो पुराने एग्जांपल से समझते हैं, राइट? यहाँ मैंने लिखा 6, जिसके मल्टी फैक्टर्स क्या होते हैं? 2 and 3, राइट? सो 2 and 3 इसके फैक्टर्स है। तो ये जो फैक्टर्स है वो इससे छोटे हैं, राइट? या 6 भी इसका फैक्टर हो सकता है, क्योंकि 6 1 जा 6, राइट? तो इसीलिए मैंने बोला कि फैक्टर्स आर इक्वल और लेस देन द नंबर। सिमिलरली जो मल्टीपल होता है वो आइदर इक्वल और मोर देन, क्योंकि देखो 6 1 जा 6 1 हो गया, एंड जो मल्टीपल है वो 2 है और 3 है। 2 और 3 6 से छोटा नंबर है, राइट? तो इसलिए मैंने बोला कि मल्टीपल्स आर आइदर इक्वल और मोर देन, or we can say that multiples are either equal or greater than. Okay, so these are the points which we have to keep in mind while estimating factors and multiples. So our next topic is prime and composite numbers. Prime numbers and composite numbers. अब प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स बेसिकली देखो, प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो या तो वो नंबर खुद होगा या फिर उसका जो फैक्टर होगा वो सिर्फ 1 होगा। मीन्स एक प्राइम नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर्स नहीं हो सकते। मीन्स जो फैक्टर होंगे वो क्या क्या होंगे? या तो वो नंबर खुद या फिर उसका जो 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 1 है वो दोनों का उस प्राइम नंबर का फैक्टर होगा। Prime number is number having only 2 factors. Either the number itself or 1.
So the number having only two factors, either the number itself or one, is known as prime number. Suppose अगर एक हम एग्जाम्पल लेते हैं से 2, सो क्या 2 एक प्राइम नंबर है? यस, 2 एक प्राइम नंबर है क्योंकि इसका जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 है, क्योंकि 1 2 2 एंड 2 1 ऑल्सो 2, क्योंकि ये एक प्राइम नंबर है. So we can, so in this way we used to define prime numbers, right? So numbers having only two factors, either the number itself or one, is called prime numbers. ऐसे बहुत सारे नंबर्स हैं जिनके जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 या वो नंबर खुद होता है, जैसे कि 2 हो गया, यहाँ 3 5 7 एंड 11, राइट? इनको जो फैक्टर्स होते हैं वो 1 या वो नंबर खुद होता है, राइट? सो अब हम बात करेंगे कि कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं. कंपोजिट नंबर्स बेसिकली क्या होते हैं? जो प्राइम नंबर्स होता है उसका ऑपोजिट. प्राइम नंबर्स पे सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं एंड कंपोजिट नंबर्स में 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं. नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स. What I have said, number having more than 2 factors are called composite numbers, right? Suppose 10. अब 10 कौन से नंबर्स के टेबल में आता है? 2 के टेबल में आता है, राइट? 2 5 10. अब सो 5 के टेबल में आता है, राइट? एंड वो 10 के टेबल में भी आता है, बिकॉज 10 1 10. एट द सेम टाइम 1 भी इसका फैक्टर है, राइट? क्योंकि 1 इज द यूनिवर्सल फैक्टर ऑफ ऑल द नंबर्स. सो 10 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है एंड 10 के टेबल में आता है, राइट? सो इन दिस, सो वी कैन से दैट 10 इज अ कंपोजिट नंबर बिकॉज इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स. इस तरह बहुत सारे नंबर्स होते हैं, जैसे कि 24 48 100 2000 3000. ओके, सो उन्हें हम बोलते हैं कंपोजिट नंबर्स. सो अब एक नंबर आता है, अब एक नंबर बच जाता है जो कि है 1, राइट? अब 1 क्या हो सकता है? या तो प्राइम नंबर होगा या फिर कंपोजिट नंबर होगा, राइट? क्योंकि प्राइम नंबर का डेफिनेशन क्या है? जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है एंड 1 के एक ही फैक्टर है, राइट? 1 1 1. सो 1 को हम लोग सपोज करते हैं नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट. सो 1 को हम लोग याद रखेंगे कि ना तो वो प्राइम नंबर है और ना तो वो कंपोजिट नंबर है. ओके, in this way
our prime numbers and composite numbers point is completed, right? So our next point which we are going to discuss is for today is test of divisibility. सो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी का मतलब क्या होता है? डिविजिबिलिटी का मतलब आपको पहले बता देता हूँ. इसका मतलब होता है कि इफ द रिमाइंडर ऑफ ए नंबर कम्स 0 then we can say that that number will be divisible by that number. ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लगा होगा मेरे बोलने से, राइट? इट मीन्स इफ द रिमाइंडर of numbers comes 0, so we can say that the number is divisible by that number. अब एक एग्जांपल से समझते हैं इसे. ओके, सपोज मैंने यहाँ दो नंबर्स लिए, से मुझे डिवाइड करना है 27 को 3 से, राइट? I have to divide 3 with 27 with the 3. Right? So 3 9s are 27, right? और इसका जो रिमाइंडर आ गया वो आ गया 0. So we can say in this that 27 is divisible by 3, क्योंकि इसका जो अगर हम 27 को 3 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आएगा, मीन्स उसका जो रिमाइंडर आएगा वो आएगा 0, राइट? So we can say that 27 is divisible by 3. So divisibility टेस्ट बहुत सारे नंबर्स के होते हैं, हम उन्हें एक एक करके देखेंगे. ओके, first we will see divisibility by 2. ओके, सो अब कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 2 से डिविजिबल है या नहीं? सपोज आपके पास एक नंबर है से 12,
तो ये तो आपको देखने से पता चल रहा है कि ये 2 से डिविजिबल होगा, राइट? कि क्यों अगर हम इसको 2 से डिवाइड, 2 6 12, राइट? तो इसका रिमाइंडर आ गया 0, तो हम बोल सकते हैं कि 12 जो है वो 2 से डिविजिबल है। लेकिन सपोज आपके पास अगर कोई बड़ा नंबर है कि सपोज 2 3 4 7 2 1 2, राइट? तो अब हमें इसका अगर इसमें कैसे पता लगाएंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं? अगर एक तो तरीका है कि हम ऐसे डिवाइड करेंगे, लेकिन बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा, राइट? आपको पूरा कॉपी उसका भर जाएगा डिवीजन से। ओके, सो ऐसे केसेस में हम उससे कुछ ट्रिक्स अप्लाई करते हैं। तो वो ट्रिक क्या होता है? अगर हमें पता लगाना है कि जो नंबर है वो 2 से डिविजिबल है या नहीं, इसके लिए हम लोग क्या देखेंगे, क्या करेंगे कि इस कोई जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर हम इसका लास्ट नंबर जो वंस प्लेस में है वो अगर 2 4 6 8 या 0 है तो वो 2 से डिविजिबल है। ऑलवेज, जितने भी बड़ा नंबर हो, राइट? अगर आपके पास 10 डिजिट्स नंबर हो, 100 डिजिट्स नंबर हो, राइट? सो वो भी अगर उसका जो लास्ट डिजिट है मीन्स वन प्लेस जो है, अगर वो 2 4 6 8 या 0 रहा तो वो नंबर 2 से डिविजिबल होगा हमेशा। So in this way we can say that any number consisting 2 4 6 8 in one's place can be divisible by 2. Now the next point is divisibility of 3. से अगर हमें पता लगाना है कि कोई जो नंबर है वो कोई एक नंबर है, उससे क्या वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं। सपोज 27 एक नंबर है सर, राइट? तो ये तो देखने से पता चल रहा है कि ये 2 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 9 27, राइट? बट आपके पास अगर सेम अगर कोई बड़ा नंबर हुआ तो सपोज 352, sorry, if we have 351, right? सो अब हम इसमें कैसे पता लगाएंगे कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं? सी, अगर ये नंबर मीन्स जितने भी नंबर्स हैं, जितना भी बड़ा नंबर हो, अगर उनके डिजिट्स का अगर हम सम करेंगे, अगर वो उसका जो सम आएगा वो अगर 3 से डिविजिबल है तो वो 3 से डिविजिबल होगा। सो व्हाट बेसिकली आई एम ट्राइंग टू से इज, अगर हमारे पास कोई नंबर बड़ा है और उसको हमें 3 से डिवाइड करना है, मीन्स उसका डिविजिबिलिटी पता करना है कि वो 3 से डिविजिबल है कि नहीं, तो वो कैसे होगा? अगर आपके पास बहुत बड़ा नंबर है, से जैसे कि हमने एग्जांपल लिया 351, राइट? सो ये कैसे होगा? सी, जितना भी बड़ा नंबर हो आप उनके जो डिजिट्स हैं उन्हें पहले ऐड कर लेंगे। जैसे कि इसमें 3 और 5 और 1 को हम लोग ऐड कर लेंगे। अगर उनका जो रिजल्ट आया वो 3 से डिविजिबल है तो वो पूरा नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। सो इन्हें ऐड करने से क्या है? 5 + 3 8 + 1 is 9, राइट? एंड 3 के टेबल में 9 आता है, राइट? सो वी कैन से दैट 351 is also divisible by 3. एक और एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। सपोज अगर हमारे पास है 256, तो हमें पता करना है कि ये 3 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा? इनके डिजिट्स को ऐड करना पड़ेगा। मीन्स 2 + 5
plus 6. So 2 plus 5 is 7. 7 plus 6 is 13, right? So 13 is not divisible by 3. So we can say that this number is not divisible by 3. So in this way we used to determine the divisibility of 3. अब हमारा नेक्स्ट डिविजिबिलिटी टेस्ट होता है डिविजिबिलिटी ऑफ 4. अब कैसे पता चलेगा कि कोई नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं? सपोज एक एग्जांपल लेते हैं. ओके, से हमारे पास नंबर है कोई 6, सॉरी फॉर दैट, 6 4 3 2. अब मुझे ये पता करना है कि ये जो नंबर है ये 4 से डिविजिबल है या नहीं. तो ये कैसे होगा? सी, जैसा हमने 2 में देखा था, जैसा 2 में हमने क्या देखा था कि जो लास्ट वाला डिजिट है वो अगर 2 4 6 8 या 0 होता तो वो 2 से डिविजिबल होता, राइट? लेकिन इस केस में हम लोग लास्ट 2 डिजिट्स को देखेंगे. हम लोग लास्ट 2 डिजिट्स से पता लगाने की कोशिश करेंगे कि वो 4 से डिविजिबल है, होता है कि नहीं. देखो लास्ट 2 डिजिट्स क्या है? 3 2 मीन्स 32 एंड 4 के टेबल में 32 आता है, राइट? बिकॉज 4 8s are 32. So we can say that 6432 is also divisible by 4. Let's take another example. Say 64180016. 64180016. तो अब ये नंबर 4 से डिविजिबल है या नहीं? आपको साफ साफ दिख रहा है इसका जो लास्ट डिजिट है वो 16 है, राइट? बिकॉज तो 16 4 से डिविजिबल है, तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिविजिबल है. सो इन दिस वे वी यूज टू डिटरमाइन वेदर द नंबर इज divisible or not by 4. Now the next divisibility is of 5. So अब divisibility of 5 कैसे पता लगाएंगे? इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं. Let's take 6 4 8 35. अब हमें ये पता लगाना है कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है या नहीं. तो ये कैसे होगा? सी, इसका सिंपल सा जो ट्रिक है वो ये है कि इसका जो लास्ट डिजिट मींस वंस प्लेस पे जो डिजिट है वो या तो 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए. अगर ये 5 या 0 होता है ये लास्ट वाला डिजिट, तो ये पूरा नंबर भी 5 से डिविजिबल होता है. तो इसके केस में 64835 मीन्स लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये नंबर हम बोल सकते हैं कि 5 से डिविजिबल है. सिमिलरली अगर मेरे पास 648210 होता, 0 लेते हैं इस बार, अगर इसमें 0 भी होता तो ये भी 0 है, मीन्स ये डिविजिबल बाय 5 है, राइट? अब ये क्यों होता है बेसिकली? देखो सपोज अगर आप 5 की टेबल्स लिखते हो तो कैसे होता है? 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, राइट?
5 6 30 एंड सो ऑन, जितना तक आपको टेबल्स याद है, राइट। तो यहाँ देखो 505050 लास्ट वाला डिजिट 50 आ रहा है, इसीलिए जो नंबर है वो 5 से डिविजिबल, या अगर उसका जो लास्ट वाला डिजिट है वो अगर 5 होता है या 0 होता तो वो 5 के टेबल में आता है। ओके, सो इन दिस वे वी यूज्ड टू डिटरमाइन द डिविजिबिलिटी ऑफ 5. So now we will see that how to determine a number whether it is divisible by 6 or not. अब 6 की डिविजिबिलिटी समझने के लिए पहले हमें 2 और 3 का जो डिविजिबिलिटी है वो हमें याद रखना पड़ेगा। 2 का डिविजिबिलिटी कैसे होता है, जो लास्ट डिजिट होना चाहिए वो होना चाहिए 2 4 6 8 या 0, तभी वो नंबर 2 से डिविजिबल है, राइट। एंड 3 के केस में जो नंबर है उसका जो सम होना चाहिए वो डिविजिबल बाय 3 होना चाहिए, राइट। एक एग्जांपल से समझते हैं इसे। सपोज हमारे पास कोई नंबर है 5416। अब मैं कैसे पता लगाऊंगा कि ये नंबर 6 से डिविजिबल है या नहीं। इसके लिए भी यही ट्रिक अप्लाई करना है। मीन्स अगर ये 2 से डिविजिबल है एंड 3 से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिविजिबल है, क्योंकि 2 3 से 6 होता है। सी डिविजिबल बाय 3, अगर ये 2 से डिविजिबल है मीन्स लास्ट में इसका जो वंस प्लेस में जो डिजिट है वो 6 है, राइट। मीन्स इट इज डिविजिबल बाय 2, है ना। एंड इसको अगर हम इनके डिजिट्स को अगर ऐड करते हैं तो वो उसका जो रिजल्ट आता है वो क्या आता है, 5 + 4 is 9 + 10 + 1 10 + 6 is 16, राइट। सो 16 3 के टेबल में 16 3 से डिविजिबल नहीं होता, तो हम ये कह सकते हैं कि ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। ऑलवेज मेक श्योर कि अगर आपका कोई भी मीन्स 2 से भी अगर नंबर डिविजिबल मीन्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, हमारे जो मीन्स अगर हम 6 से किसी नंबर को डिविजिबिलिटी पता करना है तो वो 2 और 3 दोनों से सेटिस्फाई होना चाहिए। मीन्स अगर वो नंबर 2 से भी डिविजिबल है एंड 3 से भी डिविजिबल है तो वो नंबर 6 से भी डिविजिबल होता है। अगर इसमें कोई भी एक नंबर से डिविजिबल वो नहीं होता, मीन्स अगर इस केस में 3 से डिविजिबल वो नहीं है एंड 2 से डिविजिबल है तो ये नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि ये 3 से डिविजिबल नहीं है। किसी एक भी नंबर से अगर वो डिविजिबल नहीं होता है तो वो 6 से डिविजिबल नहीं होगा। एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज 1 4 9 6 4, राइट। अब ये डिविजिबल बाय 6 है या नहीं। अब ये 2 से डिविजिबल है कि नहीं पहले पता लगाते हैं। लास्ट में 1 प्लेस में कौन सा डिजिट है 4, मीन्स ये 2 से डिविजिबल है ना। एंड 3 से अगर इसको ऐड करते हैं तो 1 + 4 + 9 + 6 + 4, 6 + 4 is 10 + 9 19 + 4 23 + 1 is 24। तो सी हियर 24 3 के टेबल में आता है बिकॉज 3 8s are 24, राइट। सो इट वी कैन से दैट it is also divisible by 3, and at the same time we can also say that this whole number is divisible by 6 because इसमें जो दोनों conditions है वो satisfy हो रहे हैं। 2 से भी वो divisible है and 3 से भी वो divisible है। So in this way we used to check the divisibility of 6.
Now let's see the next divisibility. So divisibility of 8. Sorry. तो अब हमें पता करना है कि कोई नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसके लिए भी एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक नंबर है 149216। तो अब कैसे पता लगेगा कि ये नंबर 8 से डिविजिबल है या नहीं। जैसे हमने 2 में देखा था कि वंस प्लेस में जो डिजिट है वो 2 4 6 8 होना चाहिए, तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। एंड 4 के केस में हमने देखा था कि जो लास्ट 2 डिजिट्स होते हैं वो डिविजिबल होना चाहिए 4 के, तभी वो 4 से डिविजिबल है, राइट। एंड इन दिस केस वी कैन सी दैट द लास्ट 3 digits means we have to see whether the 3 digits of this number the last 3 digits of this number whether they are divisible by 8 or not. So इसका जो लास्ट में जो 3 digits है वो क्या है 216। तो क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 2 जा 16, राइट। में से 1 गया, कैरी 1 11 10 9 8 7 6 5 5 6 8 7 56। तो इसका जो रिमाइंडर आ गया वो 0 आ गया, मींस ये 8 से डिविजिबल ये नंबर है, राइट। एंड वी कैन आल्सो से दैट दिस फुल नंबर इज डिविजिबल बाय 8 बिकॉज इनके जो लास्ट जो 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिविजिबल है, इसलिए वो पूरा नंबर भी 8 से डिविजिबल होगा। Let's take another example. Suppose हमारे पास नंबर है Suppose हमारे पास एक नंबर है वो है 6498512। अब ये 8 से डिविजिबल है या नहीं, तो हम लास्ट के 3 डिजिट्स को डिवाइड करके देखेंगे 8 से कि वो डिविजिबल है कि नहीं। 512 divided by 8 8 6 48, right। what is the remaining 3 because 5 को काट के 4 बैठेगा, कैरी 1, तो 11 1 is 10 8 is 3, right। and 8 4 is 32, उसका रिमाइंडर भी आ गया 0, राइट। सो ये नंबर 8 से डिविजिबल है। इसके साथ ही हमें ये भी पता चल गया कि ये जो पूरा नंबर है वो भी 8 से डिविजिबल होगा, राइट। सो इन दिस वे वी यूज्ड टू चेक द डिविजिबिलिटी ऑफ 8। लेट्स सी द नेक्स्ट नंबर। So next one is divisibility of 9. अब इसे हम लोग कैसे समझेंगे, राइट। सी 3 के केस में हमने क्या किया था, उसका जो नंबर्स थे उनके डिजिट्स को हमने ऐड किया था एंड देखा था कि उनका जो सम आता है वो 3 से डिविजिबल होता है या नहीं। तो इस केस में भी हम लोग सेम चीज़ करेंगे। सी हमारे पास कोई नंबर है 5292, तो हम लोग 5 + 2 करके एंड 9 + 2 मीन्स इस केस में भी हम लोग इनके डिजिट्स को ऐड करेंगे एंड देखेंगे कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। सो लेट्स चेक दैट। 5 + 2 is 7 7 + 9 is 16 16 + 2 is 18
राइट। सो 18 अगर हम इसको 9 से डिवाइड करें तो 9 2 ज़ा 18 आता है, राइट। सो वी कैन से दैट इसका रिमाइंडर भी 0 हो गया, देखो। सो वी कैन से दैट the number 5292 is divisible by 9, right? Always make sure कि हम सारे डिजिट्स को ऐड करके तभी उसको हम लोग 9 से डिवाइड करके चेक करें कि वो 9 से डिविजिबल है या नहीं। अगर वो 9 जो नंबर रिमेनिंग आता है वो 9 के टेबल्स में आता होगा तो वो पूरा नंबर भी 9 से डिविजिबल होगा। ओके let's see the next number, which is what comes after 9, 10, right? So we will see the divisibility of 10. So 10 का divisibility हम लोग कैसे पता लगाएंगे? So suppose एक नंबर है say 1 2 3 4 0, तो क्या ये 10 से डिविजिबल है या नहीं, कैसे पता लगाएंगे? सी, अगर किसी भी नंबर है, कोई भी जितना भी बड़ा नंबर है, अगर उसका जो लास्ट डिजिट है वो 0 होता है तो वो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होता है। ओके, सो इसके लास्ट डिजिट में क्या है? 0 है, मतलब ये पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होता है, राइट। सिमिलरली जितना भी बड़ा नंबर है आपके पास, अगर लास्ट का जो डिजिट है वो 0 होता है तो वो पूरा नंबर 10 से डिविजिबल होगा। The last number which we were going to discuss is 11. तो हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं? इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं। Suppose 1 2 0 6 and 7, तब हम कैसे पता लगाएंगे कि ये नंबर 11 से डिविजिबल है या नहीं? सी, इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी होगी, राइट। 11 का डिविजिबिलिटी पता निकालने के लिए हमारा जो प्रोसेस है वो है 1 2 3 4। इसके प्लेसेस को हम लोग मार्क कर लेंगे पहले, ठीक है। छोटे से पेंसिल से आप लोग मार्क कर लीजिएगा। ओके, सो अब ऑड प्लेसेस में कौन कौन से नंबर है? मीन्स 2 and 4, राइट। 7 ऑड प्लेस में है, राइट। एंड इवन प्लेस में क्या है? 1 and 3, राइट। सॉरी, ऑड प्लेसेस में 6 and 1 मीन्स 7 है, एंड इवन प्लेसेस में सिर्फ 0 + 7 है, मीन्स 7। तो ऑड प्लेसेस के जो नंबर है और इवन प्लेसेस के जो नंबर है, दोनों को हम लोग पहले अलग अलग ऐड कर लेंगे, राइट। एंड फिर देखेंगे कि उसका जो डिफरेंस है, क्या वो 0 या और 11 आता है। अगर दोनों का डिफरेंस 0 या 11 होता है तो वो पूरा नंबर भी 11 से डिविजिबल होगा। तो इस केस में 7 - 7 = 0, राइट। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो पूरा नंबर है मीन्स 1067, ये भी 11 से डिविजिबल है। इस तरह हमारा आज का टॉपिक्स हो जाता है कंप्लीट। आज हमने पढ़ा कि फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स क्या होते हैं, फिर हमने प्राइम्स एंड कंपोजिट नंबर्स के बारे में पढ़ा है ना। And next we have discussed about divisibility, right? तो आज के हम पॉइंट्स हो जाते हैं इधर कंप्लीट। So it's time for some homeworks. I hope पिछले वाले वीडियोस में जितने भी मैंने होमवर्क्स दिया था आप उनको रेगुलरली प्रैक्टिस कर रहे हो। ओके,
So the next homework which you have to do is from exercise 3.1. Again, I have forgotten to write the page number of the means I have forgotten the page number, so you can find it, right? आप खोज लीजिएगा बुक्स में. ओके, so question number 1, you may try to do this. See, question number 1 में क्या है, बहुत सारे नंबर्स है एंड में एक क्वेश्चन दिया है, आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा हर पॉइंट में, राइट? एंड यू मे ऑल्सो ट्राई क्वेश्चन नंबर 2. सो नॉट इनफ, राइट? सो ज़्यादा नहीं है ये. सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2, सिर्फ ये दोनों सम्स आप घर में करके रखना. If you have any doubt, any queries related to this chapter, you may demand for it. या आपके डिमांड पे वो जो उसका सम है वो यहाँ करवाया जाएगा. ओके, so you don't need to panic for it, and regularly practice mathematics and also all the subjects, right? So इसी के साथ हमारा आज का फर्स्ट वीडियो हो जाता है कंप्लीट. I will be back soon with the next part of this chapter. Until then, take care and have fun.